Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying chapter 2 of ISC Commerce, that is capital fixed and working. So in this chapter first we'll be understanding the nature of capital structure, financing, and then we will move towards, in the next part we will move towards fixed and working capital. ओके सो द फर्स्ट थिंग व्हाट इज कैपिटल, इससे पहले हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर 2 दैट इज कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल का क्या मतलब होता है. वट एवर मनी यू इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. ठीक, अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है. द मनी एंड द क्रेडिट, कोई भी इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, anything that is employed in the business firm is known as its finance. It is that aspect of business which is concerned with the arrangement of cash. आप कैसे money को manage करते हो so that business at all times have the means to carry out their operations smoothly. कि हर समय पर business में कुछ money, some amount of cash should be there, तो वो हर चीज़ का management is known as business finance. Okay, then moving towards it, what is financing? It is making money available whenever it is needed is known as financing. ठीक है, business finance may be defined as the planning, the raising, the managing and the controlling all the money and capital funds of any kind used in connection with the business. ठीक है, the entire collection, procurement, management of money is known as business finance. The activity of making money available in the company is known as financing. ठीक, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. अब ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं. मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन द MCQs, बिकॉज जो 2022-23 में जो भी पेपर्स होते थे वो बहुत ही ईजी लेवल के होते थे. ठीक, तो उस टाइम पर ये चीज़ें यूजुअली पूछी जाती थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे. तो दैट इज़ फॉर दिस पर्पज दैट आई एम गिविंग यू दीज क्वेश्चंस. फिर है बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल्स एंड फंड्स. Then it is all used in all types of organization, that is small, large, manufacturing, trading, मतलब हर जगह पर पैसे का इस्तेमाल होता है. It is a wider term. सिर्फ अमाउंट कितनी चाहिए इज़ नॉट बिजनेस फाइनेंस. आप उसके सोर्सेज क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, कैश को आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, उस फंड्स को कैसे कंट्रोल करोगे, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू बिजनेस फाइनेंस. ठीक, तो बैंक्स टू इन्वेस्टमेंट हाउसेज एंड लेंडर्स, फाइनेंस कंपनीज, रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस कंपनी. सो दीज आर द डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स जहाँ पर कैश जो है वो घूमता रहता है. देन इज इम्पॉर्टेंस फॉर ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस. वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक, बिकॉज इससे CFQ में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ थिंग्स. तो द फर्म can meet its liabilities in time. Prompt payment of debts helps in raising its credit standing. तो ये कुछ उसके बेसिक से जो इम्पॉर्टेंस है वो है. सेकेंड वन इज़, मतलब सबसे पहला वाला कहता है कि फर्म जो है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट कर सकता है, ओनली इफ़ दे आर हैविंग द फंड्स विद देम, द मनी विद देम. Then firm can take advantage of business opportunities. It can buy materials in bulk at low cost only if it has the finance to pay the money. Then next is the firm can carry on its business operations smoothly without any interruptions, and it can replace its plant and machinery in time, thereby improving the efficiency of business. अभी आप जब आप फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बिकॉज देयर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच दीज काइंड ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड. Then next is the firm can face recession, trade cycles, crisis, other crises more easily and confidently. The availability of funds determines the size and scale of operations. Then a firm with adequate funds can purchase necessary fixed assets and current assets. And very important, इसका एक क्वेश्चन बना भी था कि dash helps to bridge the gap between production and sales. हाउ मच इज़ द प्रोडक्शन एंड वॉट विल बी द सेल्स ऑफ द कंपनी. ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज़ द फाइनेंस दैट टेल्स कि आपको एक कंपनी में प्रोडक्शन कितना होना है और आप उसकी सेल्स कितनी कर पाओगे, ये कैसे तय होता है? बिकॉज ऑफ फाइनेंस.
An enterprise with adequate funds can pay wages and salaries to people on time, and it can spend money on the welfare of employees, and hence it will help in retaining the people in your organization. Then sound financial position enables the firm to enjoy goodwill and reputation in the business world. ठीक है. Then sources of finance, ये भी बहुत सा सिंपल सा टॉपिक है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर विद यू कि जो भी दिस मनी इज़ देयर वो कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है. तो सबसे पहले इज़ द टर्म ऑफ फाइनेंसिंग. द फर्स्ट वन इज़ द capital, that is the investment that you people make in the enterprise for the purpose of earning profits. Why is the money required? The money is required so that you can invest it into the business for the purpose of earning profit. And in business, capital is required for both production as well as distribution of goods. सामान कैसे प्रोड्यूस करना है, सामान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल दीज यू आर गोइंग टू स्टडी इन द पार्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग. देन अब सबसे पहले आते हैं 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिसमें सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है. फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मे बी दिस इज़ अ सिलेबस में है ये चीज़, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा. द क्वेश्चन सेज कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में व्हाट आर द सोर्सेज द पर्सन कैन हैव टू गेट द मनी. ऑब्वियसली you cannot a sole proprietor cannot issue money from the public, means वो कैपिटल को नहीं रेज कर सकता है थ्रू शेयर्स एंड ऑल. ठीक. तो सबसे पहले तो उसका ओन्ड कैपिटल आ जाता है इसमें, दैट इज़ द ओनर्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिटेन प्रॉफिट. जितना भी उसके पास उसका प्रॉफिट है वो इसमें आ जाता है. नाउ दिस इज़ योर पार्ट कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, अपने पास कहीं पे भी चैप्टर 1 के नोट्स आई अज्यूम दैट यू हैव मेड. इफ़ यू हैव नॉट मेड तो प्लीज़ मेक इट. चैप्टर 2 आपने डाला, आपने चैप्टर 2 में जो भी की पॉइंट्स हैं जैसे बिजनेस फाइनेंस हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो गया. फिर आता है मेरा कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला है सोल ट्रेड, डैश करके वहाँ पर लिख दो ओन्ड कैपिटल, जिसमें 2 पॉइंट्स. दिस इज योर ओन्ड कैपिटल. ओके. और इसी के ये 2 हिस्से हैं. कौन सा? द ओनर्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं उनका, प्लस जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है पिछले साल या लास्ट ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में, तो कैपिटल एंड हिज ओन प्रॉफिट दैट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. ठीक. प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो रेज लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी वो बोरो कर सकता है, यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल. Can be obtained. Long-term loan for the purchase of fixed assets can also be available from state financial corporations. तो ये कुछ specific places है जहाँ पर the person can ask for money. Then central and state government may provide special financial assistance. कुछ schemes होती है जिसके थ्रू वो पैसे पा सकते हैं in case he has got himself registered into that scheme. जैसे entrepreneurship related कुछ schemes होती है, self employment related होती है. तो in such case the person can get the money from the government also. Then is partnership. अब partnership में जो usual money होता है that is contributed by the partners. ठीक. इन द अग्रीड रेशियो. देन सी द पार्टनर्स, द 2 पार्टनर्स. ओके. तो इसमें सबसे पहले आता है रिटेन्ड प्रॉफिट्स, जो उनके कंपनी का प्रॉफिट होता है. आपने चैप्टर 3 अगर पढ़ा होगा दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी, तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इसको पढ़ा होगा, रिटेन प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म में. ठीक है. पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो रेज द मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, सेम एज द पार्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटर. उसी के जैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. देन दे कैन ऑल्सो गेट द मनी थ्रू इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज बेसिस, जिसमें आप किराए पर उसको लेते हो, किराए पर, और यू कैन से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आप उसको लेते हो एक टाइम तक. यू जस्ट पे द मनी एंड अनटिल एंड अनलेस यू बाय इट, और अदरवाइज आप उसको रेंट पर भी कर सकते हो. ठीक. देन दे ऑब्टेन शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. मतलब यू कंसिडर थिंग्स एज, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेड क्रेडिट पर. तो आप सामान जो है उनसे जो भी सप्लायर्स हैं उनसे सामान आप उधार पे ले रहे हो फॉर द टाइमिंग, एंड लेटर यू आर गोइंग टू पे द मनी फॉर इट.
ठीक है। देन थर्ड वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसका एक पूरा भरपूर चैप्टर आप पढ़ोगे नेक्स्ट में, दैट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड इट कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक, रिटेन प्रॉफिट जो भी उसके पास है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। देन इट कैन गो थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे कि डिबेंचर्स और लोन्स के फॉर्म में दैट कैन बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स दैट कैन बी टेकन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, then next is financial planning. Financial planning is a process of estimating the financial requirements of an organization. What is financial planning? जब आप ये डिसाइड करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना मनी चाहिए, उसके सोर्सेस क्या होंगे और उन फंड्स को आप यूटिलाइज कैसे करोगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस आप इसको एक बेसिक रीडिंग लगा सकते हो उसकी, कि इट डिसाइड्स कि व्हेन एंड हाउ द एंड वाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, दैट इज़ व्हाट यू डिसाइड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक। इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड बिकॉज आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो इसमें, एंड ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, दैट इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स ऑफ द प्रोग्राम, जो आपने पूरा टाइप्स ऑफ प्लान्स में पढ़ा होगा। Okay, and what does it include? It includes the estimating the amount of fixed capital and working capital जो आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. You have to decide the appropriate sources of funds and you have to decide the policies of these मतलब for the use of these funds. कितना अमाउंट चाहिए, सोर्सेस क्या क्या है उसके, और उन सोर्सेस से जब आ जाएगा पैसा तो आप उसको यूटिलाइज कहाँ करोगे. द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. Okay, hence it involves a decision regarding the capitalization, capital structure, capital budgeting, credit and collection and dividend policy. Okay, then next is the factors affecting capital structure. Very very important topic for your exams. कहीं ना कहीं घूम फिर करके इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट. भाई वाई शुड आई से कि अरे बहुत कम टॉपिक है, 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो कम से कम आप 100 नंबर तो ला ही सकते हो ना, इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. तो डोंट थिंक कि अरे 1 मार्क्स का भी अगर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे इससे पढ़ के. नो चिल्ड्रन, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग. ठीक है, दिस इज़ योर एग्जाम. Why to see a dream of bringing 90 above when you can bring a minimum of 100, ठीक, और यू कैन से अ मैक्सिमम ऑफ 100. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में. अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो ना तो आपका ऐसे समझो कि ये चैप्टर आपका 50% प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि 50% इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली. ओके, अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आपसे ये कहता है कि हम लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं. कैपिटल जब भी आप इसकी बात करते हो तो देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ कैपिटल्स. फर्स्ट इज इक्विटी, देन प्रेफर्ड, देन डेट सर्विसेज एंड अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज में आपका लोन्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कम. ओके, अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. इट मीन्स द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड and the proportionate amount that make up the capitalization. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में मेरी 2 kinds of securities हैं that are from the owner side and the borrower side. owners funds मेरे शेयर कैपिटल होते हैं और रिटेन अर्निंग्स होती है. borrowed funds मेरे डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आता है. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है द रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड own funds and debt, that is the borrowed funds, is known as capital gearing or financial leverage. तो ओनरशिप में आता है आपका शेयर कैपिटल, ठीक, एंड borrowed funds में आता है आपका डिबेंचर. और उसी के ही हिसाब से यहाँ पर बोला गया है कि whenever there is a ratio between the equity and the borrowed funds, it is known as capital gearing और financial leverage. ठीक, ये इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, MCQs बनते हैं ये पूरे पैराग्राफ से, इसीलिए इसको बोल्ड में आई हैव रिटन. व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज़ हाई, इट इज़ नोन एज हाई गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी डोमिनेट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज़ नोन एज लो गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी.
ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको ऐसे करके आप समझ सकते हो कि कंपनी में दो तरह के फंड्स होते हैं. पहला होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी. ठीक, सपोज करो कंपनी का जो टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो 100% है. हमने कहा कि इक्विटी में आते हैं आपके ओन्ड फंड्स. ठीक है, ये आते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके बोरोड फंड्स. इनका जो मनी होता है दैट यू हैव टू पे इन परसेंटेज दैट इज फ्लक्चुएटिंग एज पर द प्रॉफिट. ये जो होते हैं ये आपके फिक्स्ड होते हैं. ओके, ये होते हैं जिनकी रिस्क जो है वो हाई होती है क्योंकि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ. और ये जो रिस्क हाई होती है तो इनका रिटर्न भी हाई होता है, आपको इनको पैसा भी ज़्यादा पे करना पड़ता होगा. ठीक, इनका जब रिस्क आप लेते हो तो दे आर लेसर रिस्की. मतलब अगर मैं एक डिबेंचर होल्डर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर पैसा जो है वो फॉर श्योर मिलेगा. तो मेरा जो रिस्क भी है वो कम है, मेरा जो रिटर्न भी है वो कम है. इस पर जो इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, इस जो डिविडेंड होती है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, इस पर जो डिविडेंड होती है वो फिक्स्ड होती है. तो हम इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज़ एक कंपनी में ये जो है ये 40% है, ये जो है ये 60% है. रेशियो किसका ज़्यादा है? डेट का. हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज हाईली गियर्ड. जब डेट का रेशियो ज़्यादा है तो हाई गियर्ड, जब इक्विटी का रेशियो ज़्यादा है तो फिर लो गियर्ड. सॉरी, हाँ, यस, ठीक है. जब डेट का रेशियो ज़्यादा है तो इट विल बी हाईली गियर्ड, जब इक्विटी का रेशियो ज़्यादा है तो इट विल बी लो गियर्ड. सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है दैट इफ़ कैपिटल गियरिंग, मतलब जब आप रेशियो बिटवीन द बोरोड एंड द ओन्ड फंड्स होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लीवरेज. व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज़ हाई it will be known as high gearing or trading on thin equity, the term you need to remember. And when you are trading on when you are having equity dominates the capital structure, equity का percentage ज़्यादा है, it will be considered as low gearing और थिन ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. तो जब भी कभी अगर इसका जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होता है, इफ़ अगर सपोज करो इसका प्रपोर्शन जो है वो 60% है, इसका 40% है, हेंस इट विल बी लो गियर्ड. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ये पूरा जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें आपको यही चीज़ बताई जाएगी कि डेट और इक्विटी में क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके फैक्टर्स यहाँ पर बताए गए. सपोज करो कि एक कंपनी है दैट यूजेस बोरोड फंड्स इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. अब रेगुलर डेट में अगेन एक चीज़ होती है, इसमें वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, इसमें वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो हाँ होते हैं. ठीक, डेट और इक्विटी में जब आप ऐसे करो ना, आप शेयर्स और डिबेंचर्स का जो डिफरेंस है वो वही है यहाँ पर एज डेट एंड इक्विटी. फिर बोला गया है कि अगर आप डेट इशू करते हो तो आपकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं होती है. इसमें ओनरशिप आपकी डाइल्यूट हो जाएगी क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक, तो ये कुछ इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं. अब इसमें बोला गया है कि व्हेनेवर, एक पॉइंट दिया गया है इसमें, that when a company uses borrowed funds in the regular conduct of the business along with equity, it is said to be trading on equity. अब देखो, the point is given here that trading on equity का क्या मतलब होता है? When the firm issues debt instruments like preference shares, debentures, bonds and loans to raise its capital. ठीक, तो जब आप इक्विटी, जिसमें दैट इज़ इक्विटी शेयर्स की यहाँ पर बात की गई है, तो जब आप उसके अलावा वहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ करते हो जिस पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है, then it is known as a combination of this is known as trading on equity. They use funds to purchase assets,
finance new projects, invest in other new avenues. Firms implement this to generate additional returns. Okay, अब firms raise funds from the creditors to buy assets and then to issue them the debt instruments. ठीक है, when the rate of earnings of a company is higher than the rate of interest at which the funds are borrowed, equity shareholders can get higher earning per share due to two reasons. The rate of return on investment is more than the rate of interest payable on dividend, ठीक, and preference shares respectively, and the interest paid on debt is deducted from the calculating profits. Okay, so this we will be doing with an example जो अभी हम whenever I'll be doing MCQs तब हम इसको आपको समझाएंगे, क्योंकि वहाँ पर you will be able to understand कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है. ओके, तो दैट अर्निंग पर शेयर आई एम लीविंग एज ऑफ नाउ. वो जब हम MCQs करेंगे इसके देन आई विल एक्सप्लेन यू. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको यू कैन लीव, बट येस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको समझना पड़ेगा कि जब जो कंपनी है वो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ करती है, बिकॉज डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंपेरेटिवली प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. ठीक, तो hence the company is using these a ratio between debt and equity, and hence it is known as trading on equity. The rate of earnings is higher than the rate of interest and the rate of preference dividend. मतलब कि ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब पॉसिबल है, जब रेट ऑफ अर्निंग इज़ हायर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ प्रेफरेंसेस. जब आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपको पे करना है, उससे भी ज़्यादा आपके पास है. आप सिर्फ तब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हो. कंपनी की अर्निंग्स जो है स्टेबल है एंड रेगुलर है टू पे एटलीस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, की कम से कम आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करो. वाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज़ अ चार्ज ऑन द फर्म. भले ही कंपनी में लॉस हो या प्रॉफिट हो, यू हैव टू पे द मनी टू द डिबेंचर्स होल्डर्स. बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है कि नो, only if profits are there, only then the money will be paid. ठीक, then our next point, there are sufficient fixed assets to offer security to the lenders. मतलब obviously debenture holders have a claim over the company's assets, तो आपके पास इतने sufficient assets होने भी चाहिए. When the proportion of debt and equity in such a case is that it results in the increase in shareholders wealth, the capital structure may be called optimum. कि shareholder की wealth अगर increase हो रही है तभी हम कहते हैं कि capital structure जो है वो optimum है. तो trading on equity I hope आपको समझ में आ गया होगा कि debt, जब एक कंपनी इक्विटी के साथ साथ डेट को भी यूज़ करती है, इट इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. वेनेवर इट इज़ the ratio of debt is high, ठीक, it will be known as high geared, and whenever the ratio of equity is high it will be known as low geared. When it is highly geared it is trading on thin equity, when it is low geared it is trading on thick equity. Okay, highly geared is trading on thin equity क्योंकि equity का ratio यहाँ पर कम है, एंड लो गियर्ड मीन्स ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी क्योंकि इक्विटी का रेशियो ज़्यादा है. देन नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, द रेशियो बिटवीन द यूज़ ऑफ डेट एंड इक्विटी. तो ये कब हम डिसाइड करते हैं. अब यहाँ से अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो यहाँ से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. इफ़ अ कंपनी, इन अ कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, देयरफॉर दे आर द मतलब द कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी. ठीक, तो इन सच केस अगर जो प्रमोटर्स है कंपनी के, मीन्स द कंपनी को जो शुरू करते हैं, दोज आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. इफ़ दे वॉन्ट टू रिटेन द कंट्रोल इन देयर हैंड्स, अगर वो चाहते हैं कि उस कंट्रोल को या उस ओनरशिप को वो डाइल्यूट नहीं करें, तो वो इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेंगे. तब वो क्या करेंगे, वो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर से फंड्स लेंगे, बिकॉज बोथ आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक, दिस फैक्टर इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट जब आप कंपनीज जहाँ पर प्रमोटर्स के पास लो शेयर होल्डिंग है. इन द सेंस ऐसे समझो कि अगर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी या कंपनी ये चाहती, कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं या मेंबर्स चाहते हैं कि हम जो
ओनरशिप है उसको डाइल्यूट ना करें, उसको बढ़ाएं ना। पहले 2 मेंबर्स थे, अब उसमें 10 मेंबर्स हैं, तो वो 10 मेंबर्स हम ना करें। हम क्या करेंगे, हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स का इशू करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इक्विटी को ही इशू करेंगे इफ़ वी वांट मोर ओनर्स टू वो हैव द ओनरशिप इन द कंपनी। देन नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपसे कहता है कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल, जब भी आप एडजस्टमेंट चाहो तो आप उसमें कर सकते हो। डेट, debentures and preference shares can be paid off whenever the company feels necessary, but equity shareholders cannot be paid off at the time of the company। तो ये बोला गया है कि अगर कंपनी ये चाहती है कि डिबेंचर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का सेंस है कि अगर कंपनी के पास पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो अपने डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस पे ऑफ कर सकती है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को वंस इट इज़ इशूड इट विल गो ऑन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसीलिए हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को जनरली तब इशू नहीं करते इनिशियल स्टेजेस पे, बिकॉज उस टाइम पर आपके ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन हो जाता है। भाई कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करने का मतलब है कि आप भले कंपनी में प्रॉफिट्स हो ना हो, यू हैव टू पे द मनी टू द डिबेंचर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हेंस यू आर सपोज टू इन द इनिशियल स्टेजेस, अगर कोई फर्म जो है वो अपने इनिशियल स्टेजेस पे है तो उस समय पर डिबेंचर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस समय पर सिर्फ इक्विटी लो, भाई प्रॉफिट हुआ तो कम उसको पे ऑफ करना, नहीं हुआ तो मत करना। एंड वाइल रेजिंग द डेट द कंपनी शुड इंश्योर दैट देयर इज मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस इन लोन एग्रीमेंट्स। ओके, देन इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी जो है इट इज़ एन्जॉइंग रेगुलर एंड लिबरल अर्निंग्स, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटीज़ कैन अफोर्ड टू हैव हाई कैपिटल गियरिंग, तो इन सच केस कि अगर कंपनीज ऐसी हैं जो रेगुलर और लिबरल अर्निंग्स उनको मिल रही हैं, ठीक है, अच्छी खासी उनको अर्निंग्स मिल रही हैं, तो इन सच केस वो हाईली गियर्ड, मतलब कि उस टाइम पर वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बिजनेस फर्म्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं डिमांड में, अर्निंग्स में, इन सच केस वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पर ज़्यादा डिपेंड करे एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर ज़्यादा डिपेंड करे, तब वो डिबेंचर्स की तरफ ना जाए। देन न्यू एंड स्टैग्नेट फर्म्स में फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट। जब आप नए फर्म्स होते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपको डिबेंचर्स को इशू नहीं करना है, ठीक। देन वेल एस्टैब्लिश एंड ग्रोइंग कंपनीज। फिर एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी रीजनेबली लो। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट वेयर यू हैव टू पे द इंटरेस्ट and equity where you have to pay the dividend. Dividend is paid only when there are profits, and interest is paid whether there is profit or there is loss in that particular year। मतलब कि पर्सन को अपनी कंपनी को अपनी खुद के जेब से निकाल करके देना पड़ता है, दैट इज डेट, ठीक। तो इशू एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन costs are high. Normally the cost of debt is lower than the equity. Company should estimate and compare the cost of alternative sources before making the choice among them. High rate of tax may make debt financing more attractive, क्योंकि जो टैक्स रेट्स होते हैं वो अगर हाई हैं तो उस टाइम पर डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बिकॉज उस टाइम पर tax deduction is possible through these debt financing. Okay, next is period and purpose of financing. That tells कि if the funds are required for permanent investment, उस टाइम पर equity shares आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि equity shareholders are not redeemable within the organization for a longer period of time, but डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर प्रेफरेबल जब आपको सिर्फ कुछ समय के लिए फाइनेंस चाहिए, मीडियम टर्म के लिए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स कैन बेटर बी फाइनेंस्ड थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि मिड टर्म के लिए दैट इज़ फाइन। देन इज कैपिटल मार्केट कंडीशंस कैसी हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अगर ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी इज डीलिंग विद बूम इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग बूम पीरियड, ठीक, द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क
एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी को प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होता है. इन अ केस वेयर देयर इज़ बियरिश मार्केट और द डाउन स्विंग, मतलब जिस टाइम पर जो कंपनी की मार्केट है वो फॉल हो रही है, इन्वेस्टर्स सेफ इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं. उस समय पर प्रेफरेंस और डिबेंचर्स ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. ठीक है, दे आर लाइकली टू बी मोर मार्केटेबल. देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट ईयर आया, लास्ट ईयर नहीं, आई गेस 2023 के पेपर में इसको पूछा गया था कि गवर्नमेंट कौन सा फीचर फैक्टर है दैट अफेक्ट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें द कंपनी एंड द सेबी गाइडलाइंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड वाइल रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. तो इन सच केस यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, बैंकिंग कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन द नॉर्म्स फॉर डेट इक्विटी रेशियो एंड सीलिंग्स ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स की, मतलब कितना पब्लिक डिपॉजिट होना चाहिए उन सब पर एक स्पेसिफिक नॉर्म लगा दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होता है. फिर है नीड ऑफ इन्वेस्टर्स. अब आता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स जो कैपिटल गेन्स प्रेफर करते हैं एंड वो मैनेजमेंट में एक से चाहते हैं, मतलब कि वो वोटिंग राइट्स चाहते हैं मैनेजमेंट में. दे विल बी lured towards equity shareholders, मतलब उस टाइम पर दे want equity shares. डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स तब चाहिए होते हैं जब इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे डिज़ायर रेगुलर रिटर्न. ठीक, तो दैट डिपेंड्स, नीड ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो डिसाइड्स कि वेदर, अगर एक इन्वेस्टर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है, उसकी नीड है कि वो उसको वोटिंग राइट्स मिले, उसको अच्छा कैपिटल मिले, वो इक्विटी शेयर चाहिए होगा. अगर वो बहुत ही कॉशियस इन्वेस्टर है, इन सच केस उसको रेगुलर रिटर्न चाहिए, तो फिर वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेगा, इक्विटी का नहीं करेगा. ओके, देन कम्स द कैश फ्लो पोजीशन. द कंपनी may be earning sufficient profits but not be in the case of generating cash inflows at the time of payment of interest and loan installments. Company should analyze its liquidity position and then prepare the cash flow statements for deciding the debt equity ratio. ठीक है, तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि कंपनी अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो सकता है कि वो अर्न कर रही हो, बट फिर भी हो सकता है उसके पास कैश इनफ्लोज ना हो. उसकी सेल्स तो हो रही है, ऐसे समझो उसकी सेल्स हो रही है, कंपनी के डेटर्स हैं, मतलब कि उसके पास प्रॉफिट है, लेकिन इज़ इट नेसेसरी कि वो डेटर्स जो है वो पेमेंट जो है वो टाइमली कर रहे हों, तो नहीं कर रहे हैं. तो सच केस में उसके पास कैश इनफ्लोज नहीं है. तो इट इज़ देम हु आर सपोज टू डिसाइड कि वेदर द कंपनी इज सपोज टू पे द मनी और दे आर नॉट सपोज टू पे द मनी. तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन ये डिसाइड करती है कि उसका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या होगा. ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे. रेस्ट द कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग के अब बहुत इजी सा टॉपिक रह गया है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड स्ट्रक्चर और फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो ओनली दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी नाउ. आफ्टर दिस कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.